Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh, class 10 Sources of Energy part 4. So let's start. In the previous parts what we have seen, कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्यों कैरेक्टराइज करते हैं उनको ऐसे क्यों डिवाइड किया गया, क्या होता है, कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे कैसे एनर्जीज को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब हम देख चुके हैं. लेट्स सी. न्यूक्लियर एनर्जी, a reaction in which nucleus of an atom undergoes a change to form a new atom and releases enormous amount of energy is called as nuclear energy. nuclear energy में बहुत enormous amount of energy होती है, huge, but risky बहुत है, uncontrollable है, radioactivity नुकसान पहुंचा सकती है. So there are two distinct ways of determining nuclear fission and nuclear fusion. फिशन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना. फिशन अलग होना, फ्यूजन जुड़ जाना. देखेंगे अभी. एनर्जी रिलीज व्हेन सम चेंजेस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. रिमेंबर दिस डेफिनेशन. इट इज यूज्ड फॉर हीट जनरेशन एंड फ्यूल फॉर मरीन वेसल्स. Nuclear energy, the alternative source of energy due to energy depletion of fossil fuels, we can use that, but it forms a small amount of fuel and large amount of energy is released. थोड़ा सा यूज़ करोगे तो ये बहुत एनर्जी आएगी, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज. इसका अगर हल्का सा भी लीकेज हुआ तो इट इज़ वेरी डेडली, इसलिए हम हर दिन यूज़ नहीं कर सकते. कहीं गलती हो गई तो Alright, I hope you can understand. High cost of setting up a nuclear plant, very high cost. Pollution of environment pollution भी होता है nuclear से. Increasing demand of energy के time पे हम क्या देख रहे हैं? The combustion for fossil fuels produces acid rain and damages the plants, soils and aquatic life. Even the burning of fossil fuels is increasing the amount of greenhouse gas, CO2 gas in the atmosphere. Greenhouse gas कौन है? Methane, CH4. The construction of hydropower is disturbing ecological balance. बताया था हमने. Ecological balance means लोगों का habitation चला जाता है, जहाँ बैठे हैं वो, जहाँ रहते हैं वो लॉस्ट, प्लस बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है. मैनी थिंग्स. राइट. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी इन दी एनवायरमेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग. फिशन में हमने बताया था ना, टूटना, ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर वंस. Fission means binding of two nuclei. It is carried out by the bombardment. Bombardment means attack किया जाता है. Bombardment of neutrons over a heavy nucleus. एक heavy nucleus के ऊपर न्यूट्रॉन्स आके तेजी से बम्बार्ड करते हैं और वो ब्रेक होता है. फ्यूजन मिलाते कैसे? It is carried out by heating an extreme temperature. एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करने से. ये चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन नहीं है. फ्यूजन कंट्रोल करना इजी है, बट फिशन इज इनॉर्मस. इट इज़ अ कंट्रोल प्रोसेस, अनकंट्रोल्ड. ऑलराइट. कंट्रोलिंग में फ्यूजन ज़्यादा मुश्किल आता है, फिशन फिर भी कंट्रोल हो जाता है. इट प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड मोर एनर्जी देन अ न्यूक्लियर फिशन. फ्यूजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी. चेन रिएक्शन नहीं है बट अनकंट्रोल्ड है. ये चेन रिएक्शन है बट कंट्रोल्ड है. इसके प्रोडक्ट्स आर hazardous. It does not cause pollution. That's why fusion is more advantageous. Define process of nuclear fission.
steps involved in generating an electricity in a nuclear reactor. Nuclear fission क्या है? The process in which a heavy nucleus such as uranium, plutonium, thorium is broken into two nearly equal fragments. Fragments मतलब टूटने वाला है वो छोटों में. When bombarded with low energy neutrons, न्यूट्रॉन आके उस पर अटैक करते हैं and tremendous amount of energy is released. इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन. Steps involved in generating electricity are the fuel rods full of uranium pellets are placed in a nucleus reactor chamber. Low energy neutrons are bombarded. A self-sustaining fission chain reaction starts that release energy at a controlled rate. With this heat, the reactor converts water to steam. ये एनर्जी लेके पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. दिस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टीम स्पिन्स टर्बाइंस, और टर्बाइन स्पिन होंगे तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी. और जो स्टीम थी वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में. इट कैन बी यूज ऑल ओवर द अगेन. मतलब हमने क्या किया यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है एक कंट्रोल कैबिन में. उस कंट्रोल कैबिन से सिर्फ उसकी एनर्जी तो लेनी है हमें, और कुछ नहीं चाहिए. तो उसकी एनर्जी कैसे लेंगे हम? वी सप्लाई वाटर ओवर देयर, और वहाँ से पानी को विदाउट बीइंग टचिंग, सिर्फ पानी उसकी हीट लेके अपने आप वापस एक ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाता है. तो पानी गया तो लिक्विड फॉर्म में था, आया कैसा? स्टीम फॉर्म में. यहाँ तो हमने क्या किया? न्यूक्लियर रिएक्शन किया, पानी गया लिक्विड फॉर्म में, आया स्टीम फॉर्म में. तो हमारे पास एनर्जी आ गई न्यूक्लियर पावर प्लांट की. अब क्या कर रहे हैं? उस स्टीम को यूज़ कर रहे हैं टरबाइन चलाने में. टरबाइन चला के हम शाफ्ट पे जनरेटर चला देंगे. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एंड दिस हैपेंस इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर. नीड फॉर एनर्जी क्यों है हमें? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. नो एक्टिविटी विल अकर विदाउट एनर्जी. सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर फेज में. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट शुड बी एबल टू डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर ईच यूनिट ऑफ मास और वॉल्यूम. इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, आराम से मिलना चाहिए. इजीली ट्रांसपोर्टेड. इट शुड बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब चीप होना चाहिए. द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स. कन्वेंशनल क्या है? जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. दे आर ऑल कन्वेंशनल. फायरवुड इज ऑल्सो अ कन्वेंशनल सोर्स. जलाते हैं ना गाँव में. फॉसिल फ्यूल्स में अगर हम देखें तो मेनली कोल है. कोल इज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ऑलराइट. प्लांट्स बरीड होते हैं, बहुत हाई एनर्जी लगती है, तब जाके कहीं कोल बनता है. Moreover, coal was also used in kitchen fuel before LPG came in the industries. Petroleum क्या है? It is also formed millions of years ago. The animals got buried under the ocean surface and were converted into what? Petroleum. In due course of time, petroleum is the third major source of energy being used today. Petroleum products are used as automobile fuel and also in the industries. Natural gas mainly comes from the oil wells and is also a major source of energy. Non-renewable क्या है? जो वापस रिन्यू नहीं हो सकते, since they cannot be replenished in the future. Renewable क्या है? Which can be replenished quickly are called renewable. Example, wind energy, solar energy, हाइडल एनर्जी. हाइडल एनर्जी क्या है? हमने देख ली है. पानी से जो एनर्जी यूज़ करते हैं, बिल्डिंग अप डैम्स एंड ऑल, इज कॉल्ड एज हाइडल एनर्जी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की लिमिटेशंस क्या हैं? डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, प्रेफरेबली हाई एरियाज. लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन गेट डिस्ट्रॉयड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ hydroelectric plants.
large ecosystem gets submerged under water. So due to this anaerobic conditions की वजह से वहाँ पे मीथेन जनरेट होती है which gives rise to greenhouse gas, and even the rehabilitation of the displaced people is another big problem. थर्मल पावर प्लांट क्या है? जहाँ कोल पेट्रोलियम यूज होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, then steam is used to rotate turbine and to generate electricity. Biomass material obtained from the bodies of plants and animals is called biomass. Example है cattle dung, sewage, crop residue, wood, etc. Biogas is a mixture of methane, CO2, hydrogen, hydrogen sulfide. Alright. Wind energy क्या है? जो हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं. Windmills have been in use especially in Holland since the medieval period. वहाँ हम क्या करते हैं? टर्बाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. विंड एनर्जी की लिमिटेशंस क्या है? विंड स्पीड इज हाई इनफ, वहीं पे सेट कर सकते हैं मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर, तभी हम एक विंड मिल लगा सकते हैं. विंड फार्म्स नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत दूर खुली जगह रहेगी तो वहीं तो अच्छी हवा चलेगी. द फैन ऑफ द विंड मिल हैज़ मैनी मूविंग पार्ट्स, so the cost of maintenance and repair is quite high. Initial cost of establishing is also very high. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो अभी तक हमने उतने मतलब हाई प्लेटफॉर्म पे यूज करने स्टार्ट नहीं किए, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स. ये एंडलेस रिजर्वायर है. ऑलराइट. सोलर कुकर जानते हैं हम, बहुत ही सिंपल होता है. इट यूज मिरर्स, और यहाँ पे कौन सा कलर यूज होता है? ब्लैक कलर, टू एब्जॉर्ब दी सोलर हीट. सोलर फर्नेस इज मेड लाइक अ कॉन्केव मिरर. लार्ज सोलर फर्नेस हैज मैनी स्मॉल मिरर्स टू कंपोज वेरी लार्ज कॉन्वेक्स मिरर. द थिंग टू बी हीटेड इज प्लेस्ड नियर द फोकस ऑफ द मिरर. सोलर सेल्स क्या होते हैं? दे आर मेड फ्रॉम द सिलिकॉन. द सोलर पैनल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू electrical energy which is stored in a battery for later use. Solar energy की limitations क्या है? The technology for harnessing solar energy are at a nascent stage. At present, the cost to benefit ratio for using solar energy is not conducive. उतना beneficial नहीं लगता लोगों को कि जितना cost लगा उतना benefit आ रहा है कि नहीं. So एग्जॉर्बिटेंटली कॉस्टली लगता है लोगों को. टाइडल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से हाई टाइड लो टाइड आता है. राइट. और वहाँ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करें दैट इज कॉल्ड एज टाइडल एनर्जी. वेव्स में क्या एनर्जी है? वो कहलाती है वेव एनर्जी. ओशियन थर्मल एनर्जी, ऊपर का पानी हॉट या वार्म, नीचे का कोल्ड, वहाँ पानी की एनर्जी को हीट को यूज़ करके हम क्या करते हैं? अमोनिया को हीट करते हैं. अमोनिया वेपर बनता है, अमोनिया वेपर बनता है, टरबाइन चलाता है जनरेटर पे. टरबाइन कनेक्टेड है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और अमोनिया वापस लिक्विड बन गया और इस तरह से हमने ओशन थर्मल एनर्जी को यूज़ किया. जियो थर्मल एनर्जी, मोल्टन रॉक्स. Nuclear energy, process of during which a bigger nucleus breaks to produce two smaller nuclei. Nuclear energy के examples क्या? A very large amount of energy can be produced by a nuclear process on using very small amount of nuclear fuel. थोड़ा सा फ्यूल लिया nuclear fuel तो भी बहुत ज़्यादा nuclear energy generate हुई. The energy so produced can be easily transformed into electrical energy. It does not produce harmful gases. और कुछ harmful नहीं है इसका, बस क्या है? रेडियोएक्टिव वेस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट का लीकेज नहीं होना चाहिए.
how hydro energy can be converted into electrical energy, write any two limitations. High rise dams are constructed on the river to obstruct the flow of water to collect it at a suitable height. The stored water is a lot of potential energy. The water from a suitable height is allowed to fall on the blades of a turbine located at the bottom of a dam. Then the kinetic energy of flowing water rotates the turbine and helps the coil of the generator to rotate more rapidly between the magnetic field. उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. लिमिटेशंस क्या है इसकी? All river sites are not suitable for construction of dams. Large ecosystem are destroyed. Alright guys, I hope यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और देखी. कोई डाउट हो आपको? Do write in comments. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.